Hello, myself Abir Mazumdar. Today I am here to teach a lesson on expand output technique under the subject of computer organization and architecture for an Academy stars program. Let's begin. जैसे कि मैंने बोला मैं एक्सपैंड आउटपुट टेक्निक डील करने वाला हूँ आज एंड नो डाउट इन करंट ट्रेंड ऑफ गेट सीएससी एग्जामिनेशन इट इज़ द हॉट केक टॉपिक। अगर आप 2 to 3 years प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप एनालाइज करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर दिखेगा कि 1 से 2 क्वेश्चंस विद अ मार्क ऑफ 2 marks इज डेफिनेटली आस्क्ड फ्रॉम दिस एरिया, दिस टॉपिक। इनफैक्ट 2023 में भी पूछी गई थी, 2024 में भी 2 marks के लिए इसी सेम टॉपिक से क्वेश्चन आई थी। तो देखते हैं ये एक्सपैंड आउटपुट टेक्निक क्या है। तो आज की एजेंडा देख लेते हैं, आज हम लोग क्या क्या डील करने वाले हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, व्हाई अ कंप्यूटर नीड्स एक्सपैंड ऑफ कोड्स इन इट्स आर्किटेक्चर, दैट इज द मेन रीजन। क्या मोटिवेशन, क्या दरकारगिरी हम लोगों को एक्सपैंड ऑफ कोड टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल कोई रीजन नहीं होगी हम लोग उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले। सेकेंडली, a simple introduction to the expand outcome technique. Thirdly, most important, most amazing steps to work out the expand output problems. And believe me, with my 4 simple steps, you can easily, literally believe me, easily tackle out any problem of expand output problems. Whether it be it's of gate level, ISRO level, DRDO level, you can easily tackle out. And lastly, we are going to implement those steps to solve a gate level questions and increase our confidence. Let's proceed. So the main motivation for opcode technique, मेन मोटिवेशन मैं इन 3 पॉइंट्स में हाईलाइट करके लाया हूँ कि क्यों हम लोग को एक्सपैंड ऑपकोड टेक्निक यूज करनी पड़ी। जब हम लोग एक्सपैंड ऑपकोड टेक्निक नहीं यूज कर रहे थे तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हो रहा था कि कंप्यूटर के पास लिमिटेड इंस्ट्रक्शन स्पेस होती है। लिमिटेड इंस्ट्रक्शन स्पेस मतलब उसके पास एक सीमित जगह होती है प्रोसेसर के पास जहाँ पर वो अपने इंस्ट्रक्शन सेट को स्टोर कर पाए। एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकती थी। एट द सेम टाइम सीपीयू को वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी आनी चाहिए थी। दैट इज सीपीयू को एडिशन परफॉर्म करने आनी चाहिए, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने आनी चाहिए, लोड, स्टोर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इतने सारे टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन आनी भी चाहिए। एट द सेम टाइम सीपीयू के पास एक सीमित जगह भी है स्टोर करने के लिए। सो कहीं ना कहीं ये जो जद्दोजहद थी, इस चीज को बैलेंस करने के लिए हम लोग लाते हैं एक्सपैंड ऑपकोड टेक्निक। सो जैसे कि मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ हूँ, सो दैट द ट्रेड ऑफ sorry so the trade-off was between the number of instruction a processor can understand and the overall size of the instruction. So was the main reason, main motivation for implementing expand opcode technique. Now let's say just a simple brief formal definition. The main expand opcode technique is used as a method used in designing instruction set for processor to balance the trade-off, जैसे कि मैंने बोला उस जद्दोजहद को बैलेंस करनी थी between the number of instructions a processor can understand and the overall size of the instruction. This was just a simple introductory for expand. Let's move forward. Now, the most amazing aspect of today's lesson is this part, 4 steps to work out the expand output problem. Believe me, this 4 step can tackle out any expand output problem, any. So first thing and nothing to worry about, we are going to relate each and every step properly with the numerical part so that you can build a proper connection with these 4 steps and with the numerical for your proper understanding of expand output problems. So step 1, as it says, identify the primitive instruction in the CPU. आपको primitive instruction कौन सा है वो पहचानना है। Again, ये primitive instruction क्या होती है, कैसी दिखती है, nothing to worry about, हम लोग numerical में ज़रूर देखेंगे। Second step, calculate the total number of possible operation. Third step, identify the free opcode after allocating the existed instruction. Again, इस free opcode को कैसे पहचाने, वो कैसी दिखती है, nothing to worry about, हम लोग बहुत आसानी से पहचान लेंगे once we connect each and every these steps with our numerical. And lastly, calculate the number of derived instruction possible by multiplying using this formula. Again, ये formula क्या याद रखने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं।
Nothing to worry about because we are going to see how this formula works behind the scene using a gate level numerical. So with this, let's start with our numerical workout problem. तो चलिए, जैसे यहाँ पर न्यूमेरिकल बोली गई है, कंसिडर अ प्रोसेसर विद 16 बिट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ कि इंस्ट्रक्शन लेंथ जो है यहाँ पर दे दी गई है, 16 बिट की इंस्ट्रक्शन लेंथ है। चलो, इजी स्क्वीजी। प्रोसेसर हैज 15 रजिस्टर्स एंड सपोर्ट्स 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन एंड 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। सो एड्रेस इंस्ट्रक्शन इसमें दो टाइप की सपोर्ट की गई है। एक हो गई मेरी 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, और एक हो जाएगी 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। सो इसको यहाँ तक नोट डाउन कर लिए है प्रॉपर। इफ प्रोसेसर सपोर्ट्स 242 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, द नंबर ऑफ 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या है? अगेन ऐसे जैसे मैंने मेंशन किया, ये गेट 2023 में 2 मार्क्स के लिए पूछी गई है। तो यहाँ पर बोली गई है कि प्रोसेसर के पास 240 इन 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, तो 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन कितने सारे होंगे? जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डील किए थे, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या होता है, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो उसी कंटिन्यूएशन में हम लोग आज इसका देख लेंगे कि कैसे 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन हम लोग ऑपकोड, एक्सपैंड ऑपकोड में यूज कर पा रहे हैं। सो 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में आपको पता है एक ऑपकोड फील्ड होगी और एक ही एड्रेस फील्ड होगी, और 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में एक ऑपकोड फील्ड और 2 एड्रेस फील्ड हो जाएगी। और यहाँ पर बोली गई है 15 रजिस्टर सपोर्ट करती है। सो इन ऑर्डर टू शो 15 रजिस्टर वी कैन इजीली यूज द 4 बिट्स, और ये हो जाएगी 16 बिट की इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर भी एड्रेस 4 बिट की हो जाएगी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑपकोड बिकम्स my 8 bit and here my output becomes 12 bit. Now let's connect each and every step with the numerical. So जैसे अब मैं यहाँ पर पहला स्टेप के साथ डील करूंगा, आइडेंटिफाई द प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शन इन द सीपीयू। फर्स्ट स्टेप, प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शन को पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। उस इंस्ट्रक्शन को हम लोग प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शन बोलेंगे जिसके पास सबसे कम नंबर ऑफ ऑपकोड बिट्स असाइन है। Again, as I said, primitive instructions are those instructions which have the lesser number of opcodes bit assigned to it. तो अगर आप इन दोनों में से कंपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं इसको 12 बिट्स असाइन हुई है और कहीं ना कहीं इसको 8 बिट असाइन हुई है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन becomes my primitive, just a second, प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शन। तो टू, ये जो 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन हो जाएगी ये मेरी प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शन हो जाएगी। Now let's connect with the second step. Calculate the total number of possible operation. तो कितने सारे पॉसिबल ऑपरेशन है? 8 बिट इसको असाइन किया गया है ऑपकोड के लिए। तो यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ सेकेंड स्टेप, विद 8 बिट्स वी कैन परफॉर्म 256 ऑपरेशंस। इजी, सेकेंड स्टेप डन। थर्ड स्टेप को कनेक्ट कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द फ्री ऑपकोड आफ्टर एलोकेटिंग द एग्जिस्टेड इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर एग्जिस्टेड इंस्ट्रक्शन कितना है? 240। अब फ्री ऑपकोड क्या है मैं दिखा दे रहा हूँ। फ्री ऑपकोड इज बेसिकली कि इन जनरल तो 256 इंस्ट्रक्शन वो कर पाएगा, उसको एग्जिस्टिंग एलोकेट किया है 240, एज अ रिजल्ट ऑफ विच फ्री ऑपकोड जो है वो हो जाएंगे 16 हो जाएंगे, 16 फ्री ऑपकोड्स। सो हम लोग ने थर्ड स्टेप भी डील कर लिया, एंड लास्टली फोर्थ स्टेप डील करेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिराइव इंस्ट्रक्शन पॉसिबल बाय मल्टीप्लाइंग दिस फॉर्मूला फ्री ऑपकोड इनटू 2 टू द पावर ऑफ इंक्रीमेंट बिट इन ऑपकोड। अब इंक्रीमेंट बिट इन ऑपकोड क्या है, चलिए कनेक्ट कर लेते हैं। फ्री ऑपकोड इनटू 2 टू द पावर ऑफ इंक्रीमेंट बिट इन ऑपकोड। इंक्रीमेंट बिट इन ऑपकोड मतलब पहले ऑपकोड थी 8 बिट, उसके बाद कहीं ना कहीं ऑपकोड जो हो जाएगी वो हो जाएगी मेरी 12 बिट। तो मतलब 8 से 12, तो कितने की इंक्रीमेंट हुई? 4 बिट की इंक्रीमेंट हुई। सो सी, सो इजी, 4 बिट की इंक्रीमेंट हुई, एज अ रिजल्ट ऑफ विच 16 को हम लोग 2 टू द पावर 4 से भी डिनोट कर सकते हैं। 2 टू द पावर ऑफ 4, it becomes 2 to the power of 8, and it becomes 256 instructions. So if we go to our question,
So 256 is the correct answer. So easy to understand using these four simple steps. तो चलिए नेक्स्ट क्लास की जो टॉपिक रहेगी वो हो जाएगी एड्रेसिंग मोड इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर. अगेन इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मोस्ट थ्रिलिंग टॉपिक्स इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर. टिल देन आप प्रैक्टिस करते रहिए और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहिए. सो विद दिस लेट्स क्रैक इट.